Hello students, today we will start double integral. First beta we discuss area under curve. Beta area under curve अपना कर्व दे रखा बेटा, ठीक है पुत्र। इंटरवल की गिवन है a to b, x belongs to, function की given है y equal to fx, this one is a y equal to fx. Okay, we find area, this one x equal to a, this one x equal to b. Okay beta, we find this area under curve. बेटा आज फर्स्ट आप इसकी डेफिनेशन करांगे, फिर आप डबल इंटीग्रेशन शुरू करांगे बेटा, डबल इंटीग्रल। सो फर्स्ट बेटा मैं कर्व बना एक अगेन, दिस वन इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए, दिस वन इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी। फर्स्ट वी डिवाइड इनटू a to b interval partition, बेटा डिवाइड इनटू n इक्वल पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं डिवाइड कर ले बेटा, फर्स्ट मैं इसमें डिवाइड कर ले बेटा 3 पार्ट्स से विच, देन वी फाइंड एरिया, देन दिस इक्वल पार्ट्स मींस ईच लेंथ डेल्टा एक्स ले ली बेटा, हर एक लेंथ कितनी है बेटा डेल्टा एक्स, देन डिवाइड इनटू बेटा 3 पार्ट्स, देन वी फाइंड एरिया, दिस रेक्टेंगल्स बनानी है बेटा मैं, जो एरिया कितना बेटा दिस वन, बट दिस एरिया नॉट इंक्लूड, देन दिस एरिया बेटा अब पहले 3 पार्ट डिवाइड किया है, दिस वन इज x1, दिस वन इज x2, दिस वन इज x3, दिस वन इज x4, 3 पार्ट डिवाइड कर लो, देन दिस वैल्यू इज दिस, इफ x इक्वल टू x1 दिस वैल्यू इज fx1 एंड लेंथ कितनी है बेटा डेल्टा x। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया बेटा पहले fx into delta x, fx1, next plus fx2 delta x plus fx3 delta x, we write summation fxi delta x, I the value 1 to लेके 3 तक, then this one is not an exact area because this area not included, this one is the approximate area of rectangle. Okay, if we divide this area not included, if we divide into next 1 2 3 4 बेटा मैं इन्हें डिवाइड करता नेक्स्ट बेटा 6 डिवाइड करता, you see this one area, देखो this area and this area, so only this area not included, so अपन और better approximation मिल गई, और better approximation area मिल गया बेटा। if we divide further, if we divide next बेटा then this area not in, और better approximation आ गई, then we divide it into infinity parts, then जो लेंथ डेल्टा एक्स है बेटा, जो इन्फिनिटी पार्ट डिवाइड करता है, जी लेंथ डेल्टा एक्स है वो किसको टेंड्स करेगी बेटा 0, सो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देन वी फाइंड एग्जैक्ट एरिया, सो दिस वन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन i की वैल्यू 1 तो लेके n तक fxi डेल्टा x, वी गेट एग्जैक्ट एरिया अंडर कर्व। So beta first we divide into only 3 parts, then we find area approximation. If we further divide, then we find better approximation. Then divide into infinity parts, then length approximate tends to 0. So we find exact area. So we then definition of this integral की बन गई बेटा limit n tends to infinity summation I the value 1 to n fxi dx, we write this one equal to summation limit n tends to infinity
this one equal to a to b, बेटा कितनी आ गई a to b fx dx, because delta x tends to 0 we write dx. so बेटा a to b fx, because जो एरिया है बेटा कितों है a to लेके b तक, सो ये बेटा अपने सिंगल इंटीग्रल ते सिंगल वेरिएबल फंक्शन एरिया अंडर कर बेटा फर्स्ट ਆਪਾਂ डेफिनेट इंटीग्रल ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ बेटा. सो दिस वन इज ਆਪਾਂ यूज ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਇਨ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗਰਲ. ਸੋ बेटा फर्स्ट इंटीग्रल ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਆਪਣੇ डिस्कस ਕੀਤਾ है यू नो if one variable gives area under curve, two variables gives surface, one variable gives area and two variables gives, देखो बेटा one variable function give curve, two variable function give surface. okay, surface. next one variable gives area under curve and two variables gives volume of surface, volume under surface. so we find volume in double integral. so first बेटा लेट आप गिवन है बेटा फंक्शन. सो बेटा एरिया अंडर कर्व अपन में की रिजल्ट आया बेटा, डेफिनेशन की बनी है पुत्र, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन f x I दी वैल्यू 1 to n डेल्टा x इक्वल टू a to b fx dx. बेटा ये अपने प्रूव किया. ਹੁਣ डबल इंटीग्रल लेट सरफेस कंसीडर कर ली बेटा मैंने, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y, एनी सरफेस कंसीडर कर ली बेटा मैं टू वेरिएबल ਦੇ ਵਿੱਚ. ओके, we find try surface this one x axis, sorry y axis, z axis, this one is x axis. okay, then बेटा सरफेस कंसीडर कर ली मैंने, एक बना ली बेटा हो गया this एक सरफेस कंसीडर कर ली बेटा z इक्वल टू एफ एक्स वाई. ओके, देन प्रोजेक्शन ऑफ दिस. ओके बेटा देखिए बेटा, projection of this function we have ठीक है बेटा, एक इसकी पूरी प्रोजेक्शन है और एक आगे बेटा एक रेक्टेंगल हो जाएगा. ओके, दिस वन z is a function of xy any surface, then this one is a projection of this surface in xy plane. so beta this one x equal to a, beta suppose x lies between a to b interval, close interval, and y belongs to c to d. this one x equal to a and this one is x equal to b, and this one equal to y equal to c, and this one equal to y equal to d. okay beta, this rectangle beta. so is the projection surface the in xy plane beta एक rectangle. okay, we divide into parts beta, जिवें मैं one variable area under curve ਦੇ ਵਿੱਚ divide ਕੀਤਾ ਸੀ. so we divide x into m या n different parts, m different parts. along y beta we divide this one, this one, this one, this one, this one, x1, x2, xm, y1, y2, y3, y4, y this. बेटा n part divide करते हैं. okay, we choose this rectangle. मैं ये rectangle select करूँ. okay, this one rectangle. okay, then area of rectangle की आ गई बेटा, area of one rectangle. any select कर ले बेटा rectangle. this one equal to summation, sorry, delta xi and delta yj. बेटा any अपन rectangle select कर ली, delta xi and delta yj. okay बेटा, then this one बेटा
make a beta surface, okay, this one पूरे सरफेस बन गए बेटा। मैं इधर सुनो डिफरेंट इधर दस रहा बेटा। लेट दिस 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 वी मेक this one and this one, this one and this. So we make a bit of surface of this. Okay. बेटा ये सरफेस हो रहे इस रेक्टेंगल की बेटा मान लो दिस वन रेक्टेंगल इसका पॉइंट कंसीडर कर लो बेटा कोई यानी ए आई बी जी। ओके बी कंसीडर ए पॉइंट ए आई बी जी। तो इस जी अपनी इमेज है बेटा उरे बारे दिस वन रिप्रेजेंट एफ ए आई बी जी। सो वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगल बेटा ये रेक्टेंगल में उरे बनाया बेटा इस जी अपनी बारी है इमेज वो रहा है बेटा एफ फंक्शन ऑफ ए आई बी आई। सो वॉल्यूम ये हाइट होगी बेटा इसकी वॉल्यूम ऑफ दिस वन रेक्टेंगल जी आप बनाई है बेटा इक्वल टू एफ ए आई बी जे डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे। बेटा उरे की बन गया इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बन रही हैं दिस वन रेक्टेंगल्स। सो एक दी अपनी की आएगी बेटा वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। सो बेटा टोटल वॉल्यूम ऑफ सरफेस वॉल्यूम ऑफ सरफेस ऑफ वन रेक्टेंगल बेटा वॉल्यूम ऑफ सरफेस की आ गई पुत्र अपनी टोटल वॉल्यूम ऑफ सरफेस समेशन एफ ए आई बी जे डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे समेशन आई एंड जे। बेटा आई मान लो अपने एन पार्ट डिवाइड करता है एन पार्ट डिवाइड करता है राइट this one volume of surface okay if we divide into this is not a exact this one is a approximate value if limit beta मान लो इसनु m पार्ट च डिवाइड किया इसनु n पार्ट च डिवाइड किया बेटा then limit then volume under surface बेटा अंदर सरफेस आ रहा है वॉल्यूम अंडर सरफेस दिस वन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट बेटा एम पार्ट डिवाइड किया है एम टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन आई 1 टू m समेशन j 1 टू n एफ ए आई एफ एक्स आई वाई जे बिकॉज पॉइंट जनरल पॉइंट रख ले बेटा डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे वी राइट दिस वन इक्वल टू एग्जैक्ट वॉल्यूम वी राइट दिस वन इज ए डबल इंटीग्रेशन रीजन बेटा मान लो आर है दिस वन इज ए आर ओके एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। सो बेटा ए सी एप्पल वे फाइंड द मेथड टू वॉल्यूम अंडर सरफेस बेटा रिपीट कर रहा है बेटा इफ जेट is a function of xy then we draw this one projection in xy plane ठीक है we draw in different divide into different rectangles okay x belongs to closed interval ab y belongs to closed interval cd then area of rectangle कितना आ गया बेटा delta xi and delta yj then volume of surface f ai bj equal to delta xi delta yj। सो बेटा ये वॉल्यूम ऑफ सरफेस बेटा आप लगे आ गई ये दिस वन इज एक रेक्टेंगल दी अंडर बेटा इस सरफेस दे उरे आ रहा है बेटा इसका अपना वॉल्यूम देन टोटल वॉल्यूम अंडर सरफेस बेटा की आ गया आपको लगे दिस वन नॉट एग्जैक्ट बिकॉज वी डिवाइड इनटू इनफिनिटी पार्ट्स वी गेट एग्जैक्ट वॉल्यूम। सो बेटा ए सी बेटा वॉल्यूम ऑफ सरफेस इन माय नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस एग्जांपल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डबल इंटीग्रल बेटा किस तरह अपने सॉल्व करना है डिफरेंट एग्जांपल। थैंक यू वेरी मच।